Now come to the question number 3. If 3 upon 5 of a plot of land costs rupees 75,120, what will 7 upon 20 of the cost? This belong to question your book question number 3. If 3 upon 5 of a plot के इतने टुकड़े का प्राइस इतना है, तो what is the price of that 7 upon 20? Here plot, here cost. The cost of 3 upon 5 plot rupees 75,120, and what is the cost of 7 upon 20? So let x, जिधर x होता है उधर एरो का साइन नीचे, and here also एरो का साइन नीचे, because in this case there is direct variation. We do not compare, हम ये compare नहीं कर सकते हैं in this case now at once is this big or this big. तो इतने प्लॉट का कॉस्ट प्राइस इतना है, तो इतने प्लॉट का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है. तो इन दिस केस डायरेक्ट वेरिएशन. नाउ आई एम सॉल्विंग x अपॉन दिस, बिकॉज स्टरडे आई टोल्ड यू, बिफोर सम टाइम आई टोल्ड यू दैट जिधर एरो का साइन होता है वो चीज़ ऊपर होती है. तो x अपॉन दिस इज इक्वल टू 7 अपॉन 20 अपॉन 3 अपॉन 5. तो 7 अपॉन 20 डिवाइड बाई 3 अपॉन 5, मतलब 7 अपॉन 20 अपॉन 3 अपॉन 5 मीन्स 7 अपॉन 20 डिवाइड बाई 3 अपॉन 5. x अपॉन दिस इज इक्वल टू 7 अपॉन 20 डिवाइड साइन चेंज इनटू एंड 5 अपॉन 3. 5 1 जा 5, 5 4 जा 20. This go that side. X upon this is equal to, first of all I solve it, 7 upon 12, and after that this send 75,120 go that side. X is equal to 7 upon 12 into 75,120. 12 1 is 12. After cutting by 12, here comes 6260 and multiply by 7. There your answer come 43,820 rupees. That is your answer. It means the price of 7 upon 20 land is equal to 43,820 rupees. Now come to the question number 5. If 8 men can do a job in 5 days, how much time would 10 men take to do the same job? 8 men किसी काम को 5 दिन में करते हैं, तो 10 men उसी काम को how many days they complete? Men and days. 8 men can complete any work in 5 days and 10 men in how days? So here I write x, arrow का sign नीचे. Now I see in this question, this is very interesting question, very important question, that 8 men किसी काम को 5 दिन में करते हैं. If 8 men can do a job in 5 days, तो 10 men in how many days? 8 आदमी किसी काम को अगर 5 दिन में करते हैं तो 10 आदमी उसी काम को जल्दी करेंगे, बिकॉज नंबर ऑफ मैन इज मोर देन 8. सो हियर इनवर्स वेरिएशन. नाउ आई एम व्हेन देयर इज इनवर्स वेरिएशन, दिस एरो साइन गो अपवर्ड. नाउ आई एम सॉल्विंग एज आई टोल्ड यू दैट इधर एरो का साइन होता है वो चीज़ ऊपर होती है, तो x अपॉन 5 इज इक्वल टू 8 अपॉन 10. 2 4 जा 8, 2 5 जा 10. x upon 5 is equal to 4 upon 5 and 5 go that side. X is equal to 4 upon 5 into 5, 5 5 cut. Our answer come 4 days. It means 10 men can do this work in 4 days. Now come to the question number 6. A camp of 1000 soldier has enough food for 180 days. एक कैंप में इतने सोल्जर हैं जिनके लिए खाना है इतने दिन के लिए. If 600 more soldiers join the camp after 20 days, 20 days के बाद अगर 600 soldier और आ जाएं, तो how long will this remaining food last? तो ये खाना कितने दिन चलेगा? शुरू में इतने सोल्जर थे और खाना कितने दिन के लिए था? 180 डेज के लिए. आफ्टर 20 डेज यानी कि 20 दिन के बाद 600 सोल्जर आ गए. अगर ये ना आए होते तो खाना कितने दिन चलता? आफ्टर 20 डेज 160 डेज चलता, क्योंकि 20 डेज लेस हो गया. So now I am starting solving this question. 1000 soldiers और after 20 days मीन्स 160 डेज का खाना बचा है. और अगर अब हमारे सोल्जर 600 और जुड़ जाए, 600 और ऐड हो जाए, तो अब हमारे सोल्जर हो गए 1600. और खाना कितने दिन चलेगा? दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट.
you have to understand 1000 सोल्जर 160 डेज में खाना खत्म करते हैं, तो इतने सोल्जर जल्दी खत्म करेंगे बिकॉज नंबर ऑफ सोल्जर मोर देन 1000, नाउ 1600 सोल्जर, तो वही खाना अब इससे कम दिन में खत्म होगा. सोल्जर इंक्रीज एंड डेज डिक्रीज, सो वी this sign. In this question there is inverse variation. Now I am solving. X upon 160 is equal to 1000 upon 1600. 2020 cut, 2 8 is 16, 2 5 is 10, 160 go that side. X up is equal to 5 upon 8 into 160, 8 2 is 16 and 5 2 is 10. 100 days. It means if there is 1600 soldier, then वो खाना जो है हमारा 100 days चलेगा. I think that you understand. Now come to the question number 8. If 12 labor can earn rupees इतने in 12 days, how many labor can earn rupees 6800 in 8 days? Here there are three quantity. Here there are three things: labor, rupees and days, and we have to find how many labor. So which thing I have to find, that is I write in last, rupees, days, labor. इतना रुपया 12,240 रुपीज़ इन 12 डेज में इतना लेबर कमाते हैं, तो इतना रुपया 6800 रुपीज़ 8 डेज में कितना लेबर कमाएंगे. तो हियर x, तो एरो का साइन नीचे. नाउ वी हैव टू डिसाइड कि यहाँ एरो का साइन क्या होगा और यहाँ एरो का साइन क्या होगा. अब हम इसका और इसका कंपेयर करेंगे, रुपीज़ का और लेबर का. इतना रुपीज़ 12,240 रुपीज़ 12 लेबर कमाते हैं, तो इतना रुपया कम हुआ तो लेबर भी कम होगा. इस मीन्स इन दिस केस अगर हम इन दोनों का कंपेयर करते हैं तो इसमें तो क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन, तो एरो का साइन नीचे. नाउ कम वी कंपेयर डेज टू लेबर. 12 दिन में किसी काम को 12 लेबर करते हैं, तो 8 दिन में उसी काम को कितने लेबर करेंगे. जब डेज घटा तो लेबर हमारा बढ़ जाएगा, तो ये इन दोनों में क्या है, इनवर्स वेरिएशन, तो एरो का साइन ऊपर. नाउ आई एम सॉल्विंग. कैसे कि जिधर एरो का साइन होता है वो चीज़ ऊपर. x अपॉन 12 इज इक्वल टू 12 अपॉन 8 इंटू 6800 अपॉन 12240. 0 0 कट, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 0 कट. नाउ 4 से कट रहा है, 4 3 जा 12, 0, 4 6 जा 24, 4 8 जा 32, 4 5 जा 22. नाउ वी कट बाई 3, 3 1 जा 3. Now we cut 17, 17 5 जा 85, 17 6 जा 102. So x upon 12 is equal to 5 upon 6. 12 go that side. X upon 12 is equal to 5 upon 6 into 12. 6 2 जा 12, and our answer come 10 labor. It means दिस रुपीज 6800 रुपीज इन 8 डेज, 8 इतना रुपया 8 दिन में कितना लेबर कमाएंगे, 10 लेबर का. दैट इज योर कंप्लीट 8 क्वेश्चन.